चलें ठीक है। ओके, कल हमने एंजाइम्स पढ़े। व्हाट आर एंजाइम्स? बायोकैटालिस्ट होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? एंजाइम इनहिबिशन। तो हम लोग आते हैं एंजाइम इनहिबिशन पे। This was the major classification of enzyme. We can say OTHLIL. O is oxidoreductase, T is transferase, hydrolase, lyase, isomerase and ligases. सबके फंक्शन आप लोगों को पता है। ये होती है आपकी नॉर्मल enzymatic reaction. This is the enzyme. Enzyme is having the active site where substrate will attach. When substrate will attach to the enzyme, that complex is known as enzyme substrate complex, and ES complex is further converted to products and it left the enzyme. फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है, मैंने पहले भी बताया था। सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। concentration of substrate, concentration of enzymes and concentration of product, and fourth one is temperature and the fifth one is pH. These five are the factors which affect the rate of reaction. Okay, अब हम बात करते हैं inhibition. Inhibition से क्या समझ में आ रहा है पहले तो मुझे ये बताइए। सबस्ट्रेट को एंजाइम के एक्टिव साइट पे अटैच होने से रोकना। ओके, व्हाट्स योर नेम? धारांशी। और कोई? व्हाट इज इनहिबिशन? इधर से आगे से कोई? यस, वेरी गुड, ठीक है। द सेम आंसर। सो व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ दिस? इट विल बी गुड और बैड? yes, it can be good and it can be bad also. What is enzyme inhibition? Inhibition मतलब रोकना किसी चीज को। जब सबस्ट्रेट एंजाइम पे अटैच ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। समटाइम्स दिस इनहिबिशन इज गुड एंड समटाइम्स दिस इनहिबिशन इज बैड। ओके, इनहिबिटर्स आर द केमिकल्स, सो वी कैन से अगर वो उसे रोक रहा है तो जो आपकी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होंगी वो क्या हो जाएगी? रेट ऑफ रिएक्शन विल बी रिड्यूस्ड. So that reduce the rate of enzymatic reactions. They are usually specific and they work at the low concentrations. Basically what they did, they block the enzyme but they do not usually destroy it. Many drugs, poisons are inhibitors of enzymes in the nervous system, and there are two types of inhibition. First one is reversible and the second one is irreversible. नाम से समझ में आ रहा है reversible, it can be reversed. Irreversible, okay. Applications of inhibition, the first one is negative feedback. It can be end point and end product. Poison, snake bite, plant alkaloids and the nerve gases. Medicines, antibiotics, sulfonamides and sedatives. These all are the inhibitors. Now we are talking about what is enzyme inhibition and what are the classification of enzyme inhibition. Enzyme inhibition is basically categorized into three classes. The first one is competitive, the second one is non-competitive and the third one is allosteric site. पहले हम लोग जनरली एक बार डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग पीपीटी शो करेंगे। कॉम्पिटिटिव मतलब हाँ जरूरी है लगे। She is saying inhibitor will attach at the site of substrate, जहाँ एक्टिव साइट है, जहाँ पे सबस्ट्रेट को अटैच होना है, वहां पे आपका जो इनहिबिटर है दैट विल अटैच। तो क्या हमेशा ऐसा होता है? नो। फिर क्या होता है? यस। सो द नेम इज कॉम्पिटिटिव, सो वी कैन से हियर इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन द इनहिबिटर एंड द सबस्ट्रेट दैट हु विल अटैच. सो हियर आर 50-50% चांसेस. समटाइम्स इनहिबिटर कैन अटैच एंड समटाइम्स यस. व्हाट इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन? कोई लोड ही नहीं है लाइफ में, दो साइट अलग अलग प्रेजेंट है, एक तरफ आपका इनहिबिटर अटैच्ड होगा और एक तरफ आपका सबस्ट्रेट अटैच्ड होगा. एलोस्टेरिक एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है?
Yes, other than active site, the site where inhibitor will attach, that is allosteric enzyme inhibition. So is it clear? अब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव, जो हमने बात करी हैज ए स्ट्रक्चरल सिमिलर टू द सबस्ट्रेट, जिसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल एनालॉग. इट ऑक्यूपाइज द एक्टिव साइट, competes with substrate for the active site. Formation of ES complex is reduced while new EI is formed. अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को हम क्या कह रहे हैं, ES कॉम्प्लेक्स. लेकिन अगर वहां पर इनहिबिटर अटैच्ड हो जाएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, EI complex. Yes, it has effect reversed by increasing the substrate concentration. अगर आप सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कर दो और इनहिबिटर की कॉन्सेंट्रेशन कम कर दो तो जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी, इट कैन बी रिवर्स्ड. V maximum remain same but Km will be increased. So this is the diagram when here substrate is attached and here the competitive inhibitor will attached. Without inhibitor, the rate of reaction will be high. V maximum is same, but Km is reduced. If we are talking about the clinical importance of competitive inhibition, the pharmacological action of many drugs based on the competitive, sulfonamide is an antibiotic जो steroid synthesis को kill करती है. Basically what it does, it kills the bacteria. Methotrexate है और pyrimethamine है, ये दोनों आपकी क्या होती हैं, ये एंटी कैंसर ड्रग है और ये आपकी एंटी मलेरियल ड्रग है. दोनों किसको इनहिबिट करने का काम करती है, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज. तो जो मेथोट्रेक्सेट का एक्शन होगा ये आपका एंटी कैंसरस होता है और जो आपका पायरिमिथाइमिन का होगा ये आपका एंटी मलेरियल होता है. अब हम बात करते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. क्या बताया हमने नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, देयर विल बी नो कॉम्पिटिशन बिटवीन द इनहिबिटर एंड द सबस्ट्रेट. So non-competitive inhibitors bind enzyme at the site distinct from the substrate binding site. Generally bear a little or a no structural resemblance to the substrate. अब वो कहीं और अटैच हो रहा है तो जरूरी थोड़ी ना है कि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर का जो स्ट्रक्चर है वो भी सेम हो. कोई जरूरी नहीं है, अलग अलग भी होगा तो साइट अलग है तो दे कैन अटैच इजीली. So binding of the inhibitor does not affect binding of substance. The inhibitor combines with the enzyme and the reaction becomes irreversible. Formation of both, here we are talking about two complexes, AI complex and ES complex is therefore possible. अगर inhibitor के साथ attach हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे enzyme inhibitor complex, और अगर enzyme आपका attached हो रहा है inhibitor और substrate दोनों के साथ तो we will say it enzyme inhibitor substrate complex. In short, we can say EIS complex. Here, the V maximum, the velocity is reduced, but Km value will be not changed. So this is the reaction. यहाँ पे substrate आपका attached हो गया है, so this is the normal reaction. But after attaching of this, when inhibitor will attach this kind of structure, we can say here both enzyme and substrates are attached. So V maximum for normal enzyme, this is the normal reaction. Competitive inhibitor होगा तो आपका V maximum जो होगा वो same होगा और Km जो होगा it can be different. Non competitive के अंदर आपका Km जो होगा वो same होगा but maximum velocity it can be reduced. Increasing the substrate concentration will abolish the competitive inhibition but will not abolish the non-competitive inhibition, because in competitive inhibition there are 50-50% chances either inhibitor can attach or it can be substrate attached. So cyanide it inhibits the cytochrome oxidase, fluoride inhibits the enolase and then hence the glycolysis. इसीलिए आपको पता है जो भी हम शुगर का सैंपल लेते हैं वो हम कौन सी वाइल में लेते हैं, फ्लोराइड के अंदर. वाई? क्योंकि फ्लोराइड जो होता है आपको इनोलेज एंजाइम को चेंज करते हैं. कभी भी कहते हैं ना प्लेन वाइल के अंदर ग्लूकोज का सैंपल नहीं लेते हैं, वो इसलिए नहीं लेते हैं बिकॉज इन प्लेन वाइल इट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड एंड द वैल्यू ऑफ द शुगर कैन बी चेंज्ड. सो ऑलवेज इट कीप इन योर माइंड, जब भी आप शुगर का सैंपल आपको जज करना है तो आप हमेशा फ्लोराइड वाइल के अंदर ही शुगर का सैंपल लेंगे. आइदर इट कैन बी फास्टिंग, पोस्ट पेरेंडियल और रैंडम सैंपल. ओके. Iodoacetate it inhibits enzyme having thiol group and BAL. BAL is British anti-Leucine dimercaprol is used in antidote for heavy metal
poisoning. These are the two inhibitions. Now here we are talking about the third one. The third inhibition is allosteric inhibition. Allosteric means other site. These enzymes have one catalytic site, active site, where the substrate binds, and the other separate site, जिसे हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, allosteric site. The two site, one is active and the another one is allosteric. The allosteric site may or may not be physically adjacent, and the binding of the modifier, it may be enhanced or it can be inhibit. So आपका पॉजिटिव मॉडिफायर्स भी होते हैं और नेगेटिव मॉडिफायर्स भी होते हैं. पॉजिटिव तो क्या करेंगे, आपके रेट ऑफ रिएक्शन को इनहेंस करेंगे, और जो इनहिबिट कर रहे हैं वो क्या करेंगे, आपके रेट ऑफ रिएक्शन को रिड्यूस करने का काम करेंगे. इनहिबिटर इज नॉट ए सबस्ट्रेट एनालॉग, ये हम सबको पता है. पार्शियली रिवर्सिबल व्हेन एक्सिस सबस्ट्रेट इज एडेड. Km is usually increased, but the maximum velocity is reduced when the inhibitor binds the allosteric site. The configuration of the active site is changed so that the substrate cannot bind properly. So अगर वहां पर allosteric site पे आपका inhibitor attached हो रहा है, तो there are some conformational changes जो active sites पे हो सकते हैं. Most allosteric enzymes possess quaternary structure. Quaternary structure कैसा होता है, हाईली coiled structure. प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं ना, हाईली coiled structure. फॉर एग्जाम्पल द ग्लाइकोलिटिक पाथवे इज रेगुलेटेड बाय द फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. क्या करता है ये एंजाइम, फॉस्फोराइलेशन करता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फ्रक्टोज 1,6 बायोफॉस्फेट के अंदर. इट इज एलोस्टेरिक इनहिबिटेड बाय एटीपी एंड इट कैन बी एक्टिवेटेड बाय द एएमपी. तो एटीपी और एएमपी, यहाँ पे किस चीज का डिफरेंस है, फॉस्फेट ग्रुप का. ठीक है, जो आपका एटीपी है वो इनहिबिट करेगा, एएमपी क्या करता है उसको. सो हियर इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन वन फॉस्फेट ग्रुप. सो दीज आर द एग्जांपल्स. ठीक है, जैसे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को हमने पढ़ा, एलोस्टेरिक ये इनहिबिट कर रहा है आपका एटीपी, और जो इसको एक्टिवेट करता है वो एएमपी करता है. रेस्ट आर द एग्जांपल्स. ये टेबल आपको बुक के अंदर एज इट इज मिल जाएगी. ठीक है, अब हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी. रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी क्या होगा, या तो इंडक्शन होगा या रिप्रेशन होगा. ठीक है, रिग्रेशन होगा, ये दो ही चीजें हो सकती हैं. रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी इज नीडेड टू मेंटेन द हीमोस्टेसिस. हीमोस्टेसिस का मतलब क्या होता है, यस, मेंटेन. कई बार आपके क्वेश्चन आएंगे फेट ऑफ कैल्शियम. फेट का मतलब वेयर इट विल कम फ्रॉम एंड वेयर इट इज यूटिलाइज्ड. लाइक एलेनिन के क्या फेट होते हैं, ग्लाइसिन के क्या फेट होते हैं. क्या है एलेनिन और ग्लाइसिन, अमाइनो एसिड. ठीक है, अब यहाँ पर हीमोस्टेसिस की बात करें तो कैल्शियम हीमोस्टेसिस, कैल्शियम बॉडी में कैसे मेंटेन है. ठीक है, हाई कैल्शियम होता है तो फॉस्फोरस और पीटीएच का क्या होता है, कौन से ऐसे आपके हार्मोन्स हैं जो उसे इनहिबिट करने का काम करते हैं, और कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो उसे हाई करने का काम करते हैं. तो कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जहां से ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं और इसे मतलब हीमोस्टेसिस करने का काम करते हैं. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैल्शियम हीमोस्टेसिस. अभी आप लोगों के जब मिनरल्स होंगे उसके अंदर एक अलग से क्लास लगाइए इसकी. ठीक है, इट इज एन इंक्रीज्ड कॉज्ड बाय द इफेक्टर मॉड्यूल, एंड वेयर दे आर मैनिफेस्टेटेड इन जीन एक्सप्रेशन, आरएनए ट्रांसलेशन एंड पोस्ट ट्रांसलेशन modifications. The inducer will relieve the repression on the operator and it will remove the block of the biosynthesis of the enzyme molecules. Tryptophan, pyrrolase and transaminase induced by the glucocorticoids. What are glucocorticoids? Catecholamines, right? Glucokinase is induced by the insulin and ALA synthase is induced by the barbiturates. Repression, what is repression? The repression act on the gene level and the number of enzyme molecule is reduced in the presence of repressed molecule. The structural gene transcribed and later translated to produce the enzyme molecules. So here the key enzyme for heme synthesis is ALA synthase. जैसे हम लोग बात करते हैं कीटोसिस का कौन सा आपका की रेगुलेटरी एंजाइम है, HMG को सिंथेस. तो इस तरह से अगर हम हेम सिंथेसिस की बात करें तो आपका कौन सा है, ALA सिंथेस, एंड इट इज ऑटो रेगुलेटेड बाय द हेम. अब स्पेसिफिसिटी की बात करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्पेसिफिसिटी. एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी मतलब यस
द सबस्ट्रेट विल बी स्पेसिफिक टू द एंजाइम, कि यही एंजाइम है जो इस सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगा. सो देयर आर सम रिएक्शंस जहां पर एक एंजाइम प्रेजेंट होगा तो ही वो रिएक्शन अकर होगी, अदरवाइज दैट रिएक्शन विल नॉट बी अकर. देयर आर सम एंजाइम्स दे आर एब्सोल्युटली स्पेसिफिक. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया टू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम यूरिएज. ठीक है, अभी जैसे आप लोगों को प्रैक्टिकल्स में भी करवाएंगे, जो कलरीमेट्री की एक्सरसाइजेज होती हैं उसमें यूरिया है, आपको एस्टिमेट करना है. हम लोग आपको ब्लड सीरम देंगे और आप लोगों को यूरिया की वैल्यू खुद निकालनी होगी. कलरीमेट्री इज अ प्रिंसिपल. तो उसमें फिर आपका जो मेथड होता है, दैट मेथड नेम इज यूरिएज, बिकॉज द एंजाइम दैट इज एक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर एंजाइम और रिएक्शन दैट इज यूरिएज. Thiourea, though structurally similar to urea, but it will not act as a substrate for the urease. Bond specificity की बात करें तो मतलब as it is noted by the name, most of the proteolytic enzymes are showing group specificity, like trypsin can hydrolyze peptide bond or lysyl residues in the any proteins. Group specificity, group एक complete group के ऊपर depend करती है. जैसे hexokinase है, दे कैन बी कैटालाइज्ड फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज, लेकिन ग्लूकोज के साथ साथ गैलेक्टोज और मैनोज के फॉस्फोराइलेशन के लिए भी हेक्सोकाइनेज कैन एक्ट. ऑप्टिकल स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, ह्यूमन एंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर एल अमीनो एसिड एंड डी शुगर्स. लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसमें पायरुवेट विल फॉर्म ओनली एल लैक्टेट बट आर फॉर्म विल नॉट बी हैविंग. नाउ द न्यू टॉपिक दैट इज आइसोएंजाइम. That is very important. Isoenzymes क्या होते हैं? Okay, we have 4 girls. What's your name? Dharini, Dharanshi, Kanishka, Usha, Komal. Okay, can you please stand up? Okay, ये 4 girls हैं. Just example, इनकी हाइट सबकी सेम है नहीं although, ठीक है, शक्ल भी सबकी सेम है, बट है नहीं. हमें इमेजिन करना है, इमेजिनेशन हमें बहुत अच्छी करनी है. कैन यू टर्न? धारिणी, तुम्हारी हॉबी क्या है? धारांशी, ओके. स्केचिंग, ओके. आपकी क्या हॉबी है बेटा? बैडमिंटन. बैडमिंटन नहीं है, हम नहीं मानेंगे, ठीक है. इनकी स्केचिंग, इनकी बैडमिंटन है, इन्हें क्रिकेट बहुत पसंद है और इन्हें म्यूजिक बहुत पसंद है, ठीक है. नाउ वी हैव 4 गर्ल्स. चारों के जो नाम है सबके सेम है, धारांशी, 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 धारांशी. ये सब क्या है? दिखने में भी सेम है और इनके नाम भी सेम है. अब क्या करना है हमें? अब देखने, हरकतें ही खराब है. हरकतें ही खराब है. अब बेसिकली व्हाट आई मीन टू एक्सप्लेन, बेसिकली ये 4 गर्ल्स हैं, चारों के नाम सेम है, दिखने में भी ये सेम है, लेकिन इनके फंक्शंस अलग अलग हैं, इनकी हॉबीज अलग अलग हैं, इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं. सो जस्ट एग्जांपल, अगर ये चारों लड़कियां, इन्हें बैडमिंटन की बजाय मैं इन्हें से बैडमिंटन खिलवाऊं तो ये नहीं कर सकती है. तो कुछ एंजाइम्स ऐसे होंगे जो अगर हार्ट के लिए स्पेशलिटी है तो मसल्स के लिए एक्ट नहीं करेंगे. तो सेम ऐसे ही ये चारों जो हैं वो आइसो एंजाइम्स हैं टू ईच अदर, बट दे आर नॉट सेम, बट दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर. इज इट क्लियर? आ गया समझ में? तो ये होते हैं आपके आइसोएंजाइम्स. They are physically distinct forms of the same enzyme activity. Different molecular forms of the same enzyme synthesized for various tissues are called as isoenzymes or isozymes. For example, lactate dehydrogenase. Lactate dehydrogenase की कितने फॉर्म्स होती है? 5 फॉर्म्स होती है. The study of isoenzyme is useful to understand the disease of the different organs. अब 2 तरह की आपकी फंक्शनल प्लाज्मा एंजाइम्स हैं और आपके फंक्शनल सेल एंजाइम्स हैं. द प्लाज्मा derived proteins, they are functional plasma enzymes. Certain enzymes are proenzymes and their substrate are present to the all times in the circulation of normal individual and performs the physiological function in the blood, जैसे blood coagulation and blood clot dissolution. नॉन फंक्शनल प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या होते हैं आपके? सेल डिराइव्ड भी हम इन्हें कह सकते हैं. नॉट नोन फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द ब्लड, बेसिकली वेयर डिस्ट्रक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड अदर सेल्स. अब हम बात करते हैं किसकी? एलडीएच की. अभी हमने क्या बताया? एलडीएच की हमारे पास कितनी फॉर्म्स हैं?
5 फॉर्म्स हैं। अगर हम बात करें LDH जो है आपका स्पेसिफिक है किसके लिए, हार्ट के लिए और मसल के लिए, और इनके कितने मोनोमर्स होते हैं, 4 होते हैं। तो कितनी पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर्स बनेंगे आपके, 5। ठीक है, अब कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं आपके, लाइक MM, HH, ठीक है, H3M, H2, M2, H, M3 एंड M4। इस तरह से हम लोगों के पास कितने स्ट्रक्चर्स बनते हैं, 5। The subunit may be H is for heart and M is for muscle in polypeptide chains, and there can be 5 possible combinations: H4, H3M1, H2M2, H1M3 and M4. These 5 different types of isoenzymes seen in all individuals. अब ये जो आइसोमर्स हैं ये सब एक दूसरे के ही आइसोमर्स हैं, लेकिन इन पांचों के फंक्शंस जो होंगे वो अलग अलग होंगे। And these all are 5 enzymes. They are different to the another organ and they have different functions. M4 is seen in skeletal muscle while H4 is specific for only heart. Normally LDH2 मतलब आपका H3M1 हो गया. Here are 3 subunits for H and 1 for muscle. In blood greater than LDH1, but this pattern is reversed in myocardial infarction. इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, flipped pattern. In myocardial infarction, LDH increases within a few hours after the heart attack, reaches a peak of the 5th day and reaches normal level by the 10 to 12 day. अब किसी को हार्ट अटैक वगैरह आता है तो आर यू अवेयर कि कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो हम लोग एस्टिमेट करते हैं? There are 3 specific enzymes. The first one is CPK-MB, the second one is anti-pro-BNP and the third one is troponin. ये तीनों ही एंजाइम ऐसे हैं आफ्टर हार्ट अटैक, ये एंजाइम्स के जो एलिवेशन होता है विद इन फ्यू आवर्स दे विल बी वेरी हाई। तो इसीलिए जो आपका LDH है दिस इज ऑल्सो ए एंजाइम, इट कैन बी रेज्ड इन हार्ट अटैक आफ्टर, अब इसमें लिखा हुआ है पीक 5th डे पे हाई होता है इसका। अब 5th डे इतने दिन तो वेट हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने अदर जो आपके एंजाइम्स हैं CK-MB, ट्रोपोनिन एंड एंटी-प्रो-BNP, ये मार्कर्स जो होते हैं दे विल बी एलिवेटेड एंड दे आर वेरी स्पेसिफिक फॉर द हार्ट एंड रीचेस नॉर्मल लेवल्स बाय द 10 to 12 डे। हाई रहते हैं लेकिन 10 to 12 डेज के बाद में द लेवल ऑफ LDH दे विल बी नॉर्मल। CK, दिस इज अनदर, इट इज ए आइसोएंजाइम, इट हैज स्पेसिफिक फॉर मसल्स एंड ब्रेन। 3 आइसोफॉर्म्स होती हैं आपकी। अगर हम 2 में बात करें, MM is for muscle, BB is for brain and MB it is for heart. Okay, the MM that is CK3, it is organizing for the skeletal muscle, MB is for heart and BB is for brain, the same thing which I noted. After myocardial infarction, serum value is found increased within 3 to 6 hours. That's why this is very important for heart attack. Reaches a peak level in 24 to 30 hours and returns normal after 2 to 4 days. After 2 to 4 days फिर हम लोग क्या करेंगे, we can estimate the levels of lactate dehydrogenase. These isoenzymes are separated by the electrophoresis or by the ion exchange chromatography. Ion exchange chromatography जो है वो chromatography का एक टाइप है। Alanine aminotransferase or we can say ALT, this enzyme it is a very specific for liver. अब liver function test के अंदर there are several enzymes जिनमें से ALT भी एक enzyme है। It was also called serum glutamate pyruvate transaminase or we can say ALT as a SGPT. The enzyme needs pyridoxal phosphate as a coenzyme. ALT is found primarily in liver or the normal value of ALT can be 0 to 35 units per liter. Moderate increase may be seen in chronic liver disease. Chronic liver disease कौन कौन सी हो जाएंगी आपकी? How we can define a particular disease in a chronic condition? हम कैसे define करेंगे कि chronic है? A long time. Can we define it? Long time कितना long time? More than 6 months. ठीक है? If a disease is continuous from last more than 6 months, then that particular disease is known as chronic condition. जैसे liver disease है आपकी, acute liver disease भी हो सकता है,
क्रॉनिक लिवर डिजीज भी हो सकता है। तो क्रॉनिक हम उसे तभी बोलेंगे व्हेन द डिजीज इज कंटिन्यूअसली परसिस्टेंट टू 6 months. Then very high values are seen in acute hepatitis, either toxic or viral in origin. ALP is what? It is an alkaline phosphatase. It is again a enzyme for liver. ALP is non-specific enzyme which is hydrolyzed aliphatic, aromatic or heterocyclic. The pH for this enzyme is slightly alkaline. The normal serum alkaline phosphatase consists many distinct isoenzymes found in liver, bone, placenta and less than small intestine. Moderate increase कहाँ पे होगा आपका? In hepatic disease, and very high levels of ALP they can be seen in the obstructive jaundice. अब 3 तरह के jaundice होते हैं. So in obstructive jaundice the level of ALP will be high. तो जब अभी आप लोगों को केस स्टडीज वगैरह भी दी जाएंगी, अगर आपका OTPT is normal but ALP is high, so you can judge that the jaundice type is ऑब्स्ट्रक्शन. ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एएलपी का सिंथेसिस क्या हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है, सॉरी हाई हो जाता है. तो एएलपी के लेवल्स क्या हो जाएंगे? बहुत हाई हो जाएंगे. ओके. एसिड फॉस्फेटेज, इट हाइड्रोलाइजेस फॉस्फोरिक एसिड एट पीएच बिटवीन द 4 and 6. द नॉर्मल वैल्यूज फॉर एसिड फॉस्फेटेज इज 2.5 to 12 unit per liter. ACP is secreted by the prostate cells, RBC, platelets and WBC. The prostate isoenzyme is inactivated by the which enzyme? Tartaric acid. ACP total value is increased in prostate cancer and highly elevated in the bone metastasis and prostate cancer. So these are the enzymes and these are the major diagnostic use. जो अभी हमने पढ़ा, ये सेम चीजें हमने इस टेबल में डिनोट करी है. ये टेबल भी आपको बुक में मिल जाएगी. These are the enzymes. जैसे हमने पढ़ा था यूरिएज है, स्पेसिफिक होती कौन से पैरामीटर के लिए? यूरिया के लिए. सेम वैसे यूरिक एज है यूरिक एसिड के लिए. सो दीज आर द एंजाइम्स एंड दे आर वेरी स्पेसिफिक टू द पर्टिकुलर पैरामीटर. ओके. एडेनोसिन डीएमिनेज एडीए, दे आर एलिवेटेड इन ट्यूबरक्लोसिस एंड लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज सीएसएफ प्लूरल, ये किसमें आपके होते हैं? प्रेजेंस ऑफ ए मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल्स. दिस इज ऑल अबाउट द enzymes. If we are talking about the therapeutic uses of enzymes, this is the last slide. Asparaginase, streptokinase, hyaluronase and pancreatin and papain. These all are the what? These all are the enzymes which we are using in a therapeutic site or therapeutic clinical site of you. This is all. तुम बच्चे अभी से शैतान हो गए हो. कोई बात नहीं, जो नहीं होगा बेचारा उसी का नाम लेंगे, इतना तो हमें भी पता है. ओके.